میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں اسلام آئیے سارے بھرپور مل کے سب تعریف جائیں. آپ سب کو خداوند کے حضور خدا کے مذبح پر خوش آمدید کہتی ہوں. آمین. تھینکس گاڈ. خدا کا طاقت ہمارے درمیان لگ چکا ہے. پریز گاڈ. ہیلیلویا. شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند جو تعریف اور عزت اور بزرگی کے لائق ہے. سارے سجدے خداوند کو واجب ہیں. شکر گزاری کرتے ہیں. ساری حمد خداوند کے لیے ہے. خوبصورت حمد کے لیے پیاری بیٹیوں پیارے بیٹوں کے لیے جنہوں نے خدا کے تخت خدا کے مذبح کو سجایا ہے. تھینکس گاڈ. خداوند اپنی بچیوں کو برکت دے. آمین. ہیلیلویا. تھینکس گاڈ. تو آئیے کلام مقدس میں سے ہم کرنتھیوں کے نام پالس رسول کا خط ہے. پہلا کرنتھیوں اور اس کا نامہ باب اور اس کی 19 آیت. ایک آیت پڑھیں آپ. نو باب 19 آیت. اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لوں. آمین. 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 خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے اور اس پر عمل کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آج ہم بزرگ پالوس رسول کی جو حالات زندگی جو انہوں نے مسیح میں رہ کے گزاری ہے وہ سیکھیں گے, وہ سنیں گے. کیسے وہ اپنی زندگی کو کیسے وہ کلیسیا کے لیے کیسے وہ کلیسیا کو ہدایت کر رہے ہیں, کیسے وہ اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا مسیح کے لیے, کیسے وہ اپنے شاگرد تیموتھیوس کو ہدایت کرتے ہیں. یہ کچھ باتیں ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے سنیں گے, سیکھیں گے بڑے آرام سے پوری توجہ کے ساتھ. یہاں سے جو ہم پہلی آیت پڑھی ہے 19 آیت کہتے اگرچہ میں نے سب لوگوں سے اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا لیا ہے. اور پالوس رسول مسیح کا اپنے آپ کو مسیح کا غلام بھی کہتا ہے. اپنے آپ کو مسیح کا غلام بھی کہتا ہے کہ میری کوئی پہچان نہیں. ٹھیک ہے. آج کل کے خادم بہت بڑے نام اپنے آپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پالوس رسول کہتا ہے میں مسیح کا غلام ہوں. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کا غلام بنا دیا ہے. مسیح کا غلام اس لیے کہتا ہے کہ میری کوئی پہچان نہیں, میری پہچان مسیح یسوع ہے. آمین. میری پہچان میرا آقا مسیح یسوع ہے, اس لیے کہتا ہے میں مسیح کا غلام ہوں. تو یہاں کلیس کہتے ہیں سب کا غلام میں نے بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں. چھوٹا بن کے غلام کیا ہوتا ہے, چھوٹا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں تاکہ میں بہتوں کو کھینچ لاؤں, بہت سارے لوگوں کو مسیح کی طرف چھوٹا بن کے غلام بن کے لوگوں کو. ابھی زیادہ یہاں لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, غور طلب باتیں ہیں, غور کرنی ہے کہ پالوس رسول ہمیں کیا نمونہ دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. رات کو بھی اپنے کلام سنا, فاسٹ فارورڈ کرو کس طرح چلتے ہو. تو ابھی ہم پالوس رسول کی زندگی سے سیکھیں گے. کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں, غلام بن کے میں زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں. ابھی کہتے ہیں میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں, مسیح کے پاس کھینچ لاؤں. یہودیوں کے لیے یہودی بنا, مسیح کی طرف یہودیوں کو کھینچ لاؤں. یہودیوں کو کھینچ لاؤں جو لوگ شریعت کے متحد ہیں, ان کے لیے میں شریعت کے متحد ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو کھینچ لاؤں, تاکہ شریعت والوں کو بھی جو شریعت فضل پر نہیں ابھی آئے, مسیح کو نہیں قبولا, ان کو بھی مسیح کی پہچان کراؤں, ان کو بھی کھینچ لاؤں. اگرچہ خود شریعت کے متحد نہ تھا اور بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں. اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا.
कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को खींच लूं। कमज़ोरों के लिए क्या बना? कमज़ोर बना, जो बहुत ही डगमगाते थे अमान मसीह पर नहीं, कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को खींच लूं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना। उस वक़्त जिस हाल में लोग थे ना, उनके लिए कहते मैं सब आदमियों के लिए क्या बना? सब कुछ बना हुआ हूँ ताकि किसी तरह से बाज़ को बचाऊं। किसी तरह से मैं बाज़ को बचाऊं। क्या जब वो आया है, रसूल बना है, खिदमत में आ गया है, तो वो उसकी क्या कोशिश है कि लोगों को खींच ले। कहते हैं मैं सब के लिए क्या बन गया? ऊपर जो हमने 19 आयत पढ़ी है, कहते हैं सब का गुलाम बना हूँ, गुलाम बना। ठीक है, वो सबसे पहले आके वो क्या नहीं बैठ गया, अच्छी जगह पर बैठने गया। हमें जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि वाकई उसने कितनी मुसीबतें और कितने दुख किन के लिए उठा रहा है? मसीह के लिए है और लोगों के लिए, कलीसिया के लिए उठा रहा है, ताकि मैं खींच लाऊं, लोगों को खींच लाऊं। ठीक है, तो फौरन ही वो नहीं बैठ गया कि सोफे पे बैठ गया या अच्छी चेयर पे बैठ गया या मेज पे आ गया। क्या बना? कहते हैं मैं गुलाम बना। पीछे अब देखते हैं, कहते हैं मैं मसीह का गुलाम बना। यहाँ कहते हैं सबका गुलाम बना हूँ। तो कहते हैं किस तरह मैं खींच लाऊं? मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूँ ताकि किसी तरह बाज़ को बचाऊं। कहते हैं और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूँ। सुने जी, सब कुछ किसकी खातिर करता हूँ? अंजील की खातिर करता हूँ। अंजील मसीह यीशु का अखबार बयान करती है कि मेरे आका ने ज़मीन पर रहकर कितनी मुसीबतें किसके लिए उठाई हैं, ताकि हम खुदा के फर्जंद बन जाए, ताकि हमें बाप की पहचान करा दे। ठीक है, अब पौलुस रसूल कहते हैं मैं अंजील के लिए बना हूँ। सब कुछ मैं, कहते हैं मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूँ ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हो जाऊँ। आमीन। कल्ला ही बंदा खुदा दी बादशाही च जाए। एक खादम में चरवाहा है, ठीक है, पासबान है कलीसिया का, कोई काम नहीं करता, कोई मेहनत लीडर है, उसका नाम है, ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा काबिल है भाई, है, लेकिन जाता ही नहीं है। मेरा आका जब आया, मसीह यीशु आया, तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? मसीह खुदावंद गांव गांव, शहर शहर, गली गली फिरता रहा ताकि बहुतों को खींच लाए। तो पौलुस रसूल भी यह क्या कहते हैं? सुनने गौर से तवज्जो कीजिए, ताकि मैं औरों के साथ उसमें शरीक हो जाऊँ, औरों के साथ, बहुतों के साथ मसीह में शरीक हो जाऊँ। ठीक है, बहुतों के साथ शरीक हो जाऊँ, औरों के साथ उसमें शरीक हूँ। और क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। अब कहते हैं, अब हमारा जो आज का अनुमान है ना, वो है रासबाजी की दौड़। अभी जो हमारा अनुमान है, आज का जो हमारा अनुमान है, वो है रासबाजी की दौड़। रासबाजी की दौड़, हम रासबाज हुए ना, मसीह को पहन लिया, मसीह को कबूल कर चुके, ठीक है, पानी का बपतिस्मा ले चुके, और हमें अलग अलग खिदमतें दी गई हैं, हमारे सुपुर्द अलग अलग खिदमतें सौंपी गई हैं। अभी हम देखते हैं कि पौलुस रसूल क्या सिखाता है अपना हवाल दे के। कहते लिखा कलाम मुकद्दस में कि दौड़ने में दौड़ते तो दौड़ने सभी दौड़ते हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। अब कलीसिया की तरफ आ गया है, ठीक है, अब मेरी और आपकी तरफ उसका इशारा है, लीडरों की तरफ उसका इशारा है। कहते हैं, कलाम सिखाते हैं कि तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हर एक पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मर जाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मर जाता। अभी उसने ये बात की है, कहते लोग जो दौड़ते हैं वो दुनियावी दौड़, जहाँ तक उसने कहा ना दौड़ में सभी दौड़ते हैं, दुनियावी दौड़, दुनियावी पहलवान की बात की है उसने। तो अभी कहते हैं कि वो लोग किस सेहरे के लिए परहेज करते हैं और किस सेहरे के लिए दौड़ते हैं? मर जाने वाले सेहरे के लिए। इतनी मेहनत, इतनी ताकत हो उस सेहरे के लिए करते हैं जो मर जाता है। कहते हैं लेकिन हम
मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मर जाता, उस सेहरे के लिए दौड़ते हैं, उस सेहरा पाने के लिए, उस अनाम के लिए कि जो नहीं मर जाता, जो छीना नहीं जाता। कहते हैं बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेटकाना नहीं। सुने जी, पालूस रसूल कहता है बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, बेटकाना नहीं। कई बेटकाना ही दौड़ लाई जाते हैं, ठीक है, सफर करते ने दौड़ते ने पे बेटकाना टकाने का पता ही नहीं चलता पाया कि ਅਸੀਂ किस टकाने ते साडा मकाम की, साडी मंजिल की, साडा निशान की, किधर दौड़ते जा रहे हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलता ते दौड़ लगी हुई है, ठीक है। अभी पालूस रसूल मुझे और आपको क्या सिखाता है, कहते हैं बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेटकाना नहीं, मैं इस तरह मुक्कों से लड़ता हूँ। कहते हैं मैं इस तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ। किसको? ऐसे नहीं कि हवा से मुक्के चलाई जाओ, है जैसे बाज ऐसे बंदे दौड़ते हैं कि उन्हें पता ही नहीं मेरा निशान कहाँ, मेरी मंजिल क्या है और मैं किधर को जा रहा हूँ, बेठिकाना ही ठिकाने का पता ही नहीं है, अपने निशान का पता ही नहीं है, या उस हवा में मारते चले जाते हैं, है? तो पालूस रसूल क्या कहते हैं, मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरो, है, औरों में मनादी करता जाऊँ और खुद में नामकबूल ठहर जाऊँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ताकि कोई मुझ पे ऐब ना लगाने पाए, कोई मुझ पे उंगली ना उठाने पाए। तो जो बात है, आज का हमारा जो अनवान है, रासबाजी की दौड़, और कलाम मुक़द्दस में से हमें पता चलेगा कि रासबाजी की दौड़ वो कैसे दौड़ा। आइए अमाल की किताब, उसका 14वां बाब है, 14वें बाब की 21 आयत पढ़ें। होर्मुज शहर में खुशखबरी सुनाकर और बहुत से शिगिर्द करके लूस्त्रा और तकनीम और अंताकिया को वापस आए। आमीन। 19 आयत पढ़े। फिर बाज यहूदी अंताकिया और इल्कीम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मगर जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चला गया। आमीन। कहते बस फिर बाज यहूदी अंताकिया अकनीम से आए और लोगों को अपनी तरफ करके पालूस को संसार किया। लोगों को काफ़ी लोगों को अपनी तरफ मुखालफत में पालूस की मुखालफत में अपनी तरफ करके पालूस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर इतना मारा कि मुर्दा समझ के मुर्दा सा करके शहर के बाहर घसीट ले गए। ठीक है, मुर्दा जब मर जाता तो उसमें हिम्मत है, बंदा मर जाता तो उसमें हिम्मत नहीं तो रहती। घसीट के बाहर ले गए, शहर के बाहर घसीट कर ले गए। ठीक है, अभी जो 21 आयत पढ़ी है, कहते हैं उससे और जहाँ पे वो बरनबास को लेके फिर मनादी करना शुरू हुआ और वह उस शहर में खुशखबरी सुनाकर बहुत से शागिर्द करके लुस्रा और अकानीम और अंताकिया को वापस आए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत किया। शागिर्दों के दिलों को क्या किया? मजबूत किया। अभी पालूस रसूल का क्या काम है कि कलीसिया को शागिर्दों को मजबूत करे। मैंने कहा कि उसके शागिर्द तिमोथियस के बारे में वो कैसे नसीहत उसको कर रहा है, कलीसिया को कैसे नसीहत मजबूत कर रहा है और शागिर्दों को कैसे मजबूत कर रहा है, खुद उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है मसीह में। ये सारी 3 पॉइंट है, इन पॉइंटों पर हम गौर करेंगे। कहते और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर क्या करें? कायम रहे। क्या करें? ईमान पर कायम रहे। ईमान पर कायम रहो और कहते थे कि ज़रूर है कि हम बहुत
मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए। पौलुस रसूल क्या कह रहा है? अभी शिगिर्दों कहते हैं अमान से कायम रहना जे भाइयों, अमान से कायम रहना जे, ईमान नू छोड़ना नहीं जे, ठीक है। कहते लिखा अभी कलामे मुकद्दस की रोशनी में, कहते बहुत ही मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। बहुत सारी मुसीबतें उठाए और फिर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। कहते ना मैं बेटकाना दौड़ नहीं रहा, हमने वहां पढ़ा ना, मैं बेटकाना नहीं बल्कि मैं कोई निशान है मेरे सामने, ठीक है, बेटकाना नहीं दौड़ना। कहते बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। कहाँ दौड़ के जा रहा है? बादशाही में, खुदा की बादशाही की तरफ। कहता है पहले क्या है? बहुत मुसीबतें उठाकर खुदा की बादशाही में, ठीक है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया। क्या किया? बुजुर्गों को वहाँ तशगीद बना के उनको ईमान पर कायम करके, और क्या कर दिया? वहाँ बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोज़े से दुआ करके, क्या करके? रोज़े रख के, रोज़े से दुआ करके उन्हें खुदा के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। किसके सुपुर्द कर दिया? खुदा के सुपुर्द कर दिया जिस पर वो ईमान लाए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों, अभी हम पौलुस रसूल के दुखों, कहते हैं ना बहुत सी मुसीबतें उठाकर हम क्या करेंगे? खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये ही काफ़ी नहीं है, ये हमारी इब्तिदा है कि तौबा की, गनाहों से मुर्गे, गनाहों से फिरे और पानी का बपतिस्मा ले लिया और इबादत कर रहे हैं, ठीक है। आगे बादशाही में जाने के लिए, और जैसे पौलुस कहता है, और जैसे पौलुस नजर आ रहा है मसीह के आगे बैठा हुआ है बहुत से इनाम हासिल करके, ठीक है। तो उस जगह के लिए वो सबको आबार रहा है, सबको तैयार कर रहा है। आज यहाँ की कलीसिया के लिए है ये कलाम। दूसरा कोरिन्थियों निकाला आपने, उसका 11 बाब है, 11 बाब और उसकी 22 आयत पढ़िए। क्या होगी? क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वही इस्राएली है? मैं भी हूँ। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से है? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा यह कहना दीवानगी है, मैं ज़्यादातर हूँ। मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। आमीन आमीन। कहते मैं ज़्यादातर हूँ, कहते मेहनतों में ज़्यादा। कितनी ज़्यादा मेहनत की? कितने खाते हैं पौलुस रसूल के बुजुर्ग? 14 खतूत लिखे हैं, है? तो कितनी मेहनत है उसकी। अभी देखे ये अपनी वो लिस्ट पूरी भरी है। कहते हैं मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, ठीक है। मसीह को कबूल किया है तो अभी मुसीबतें, कहते हैं उनको कहते हैं बहुत सारी मुसीबतें सहकर हम क्या करेंगे? खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। कहते हैं ज़्यादातर बार हम मौत के खतरों में रहा हूँ। क्या? कितनी बार मैं मौत के खतरों में रहा? मौत के खतरों में मैंने यहूदियों से 5 बार 1 कम 40 कोड़े खाए। मेरे आका ने कितनी बार कोड़े खाए? मसीह यसू ने कितनी बार कोड़े खाए? कितनी बार कोड़े खाए यसू मसीह ने? एक बार। या पौलुस रसूल कहते हैं मैंने यहूदियों से 5 बार, कितनी बार? 5 बार। सुन ले, कहते हैं बारहा मैं मौत के खतरों में रहा हूँ, 5 बार 1 कम 40 से 40 कोड़े खाए, 3 बार बैत लगे। 3 बार क्या लगे? बैत लगे, ठीक है। और 1 बार संसार किया गया, और मैं 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा रहा। मनादी के लिए गया तो जहाज रास्ते में टूटे हैं। कहते 3 बार मैं जहाज टूटने की बला में पड़ा रहा, ठीक है। हमें कई बार मुसीबतें, हमारे कई बार एक्सीडेंट होते हैं, हम गिरते हैं, चोटें लगते हैं, हड्डियाँ टूटती हैं, तो हमें लोग क्या करते हैं? मजाक कराते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे? कहते हैं 3 बार, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं 12 सफ़र में, बहुत ज़्यादा सफ़र में रहा। क्या करता रहा? सफ़र में
منادی کے لیے, خدمت کے لیے بہتوں کو کیا کروں, مسیح کی طرف کھینچ لو. توجہ سے سننا جی. دریاؤں کے خطروں میں, ڈاکوؤں کے خطروں میں, ابھی دریاؤں کے خطروں میں بھی ہے, ڈاکو بھی آ گھیرتے ہیں. ڈاکوؤں کے خطروں میں, اپنی قوم کے خطروں میں, غیر قوم کے خطروں میں, شہر کے خطروں میں, بیابان کے خطروں میں, سمندر کے خطروں میں, جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں, محنت اور مشقت میں. اس کے علاوہ کیا کر رہا ہے؟ محنت اور مشقت کر رہا ہے. پالوس رسول کا پیشہ کیا ہے بھلا؟ پیشہ کیا ہے؟ خیمے بناتا تھا, خیمے سلائی کرتا تھا. کہتا کلیسیا پر بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں لکھا کلام سکھاتا ہے, کہتے ہیں میں محنت اور مشقت میں بھی رہا ہوں. اتنے مصیبتیں, اتنے سفر بھی کلیسیا کے لیے کر کے بھی, پھر بھی محنت مشقت اپنے ہاتھ سے, محنت اور مشقت میں, بارہا بیداری کی حالت میں. ہیلیلویا. کیا کیا ہے؟ کام ڈیوٹی کرنے ہے بیٹی ہے, دعا دا ٹائم ہی نہیں لگتا. کیے دعا دا ٹائم ہی نہیں ہے. 4 بچے پیدا ہو گئے نے, دعا دا ٹائم ہی نہیں ہے. کیے محنت کر رہے ہیں پہ, روزی کما رہے ہیں پہ, اچھی محنت بھی کرنا ہے, اے بھی تے دعا ہی ہے نا. تو ابھی پالوس رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ بیداری کی حالت میں, ٹھیک ہے, محنت اور مشقت میں, بارہا بیداری کی حالت میں بھی رہا ہوں. ہیلیلویا. کیا رہا ہوں؟ بیدار. مسیح کے لیے بیدار بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں بیداری کی حالت میں, اور بھوک اور پیاس اور مصیبت میں. بھوک بھی صحیح ہے, پیاس بھی صحیح ہے, مصیبت بھی صحیح ہے. اعمال کی کتاب میں جو ہم نے حوالہ پڑھا, کہتے ہیں بہت سی مصیبتیں اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں, کہتے مینوں نظر آتا پیا کہ بہت ساری مصیبتیں اٹھا کے خدا کی بادشاہی نوں ویکھنا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے دکھ اٹھا کے خدا کی بادشاہی نوں ویکھنا ہے. ٹھیک ہے, اے جی سنڈے دے سنڈے دعا بہت ہی کیتی ہے تو خدا کی بادشاہی نصیب ہو گئی. ٹھیک ہے, کیا مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے. پالوس رسول کی زندگی پہ ہم غور کر رہے ہیں. کہتا ہے بھوک اور پیاس کی مصیبت میں, بارہا فاقہ کشی میں, فاقے بڑے کٹے نے. ٹھیک ہے, جب سفر میں ہے, جہازوں میں ہے, تو پھر ماں روٹیاں پکا کے بیٹھی ہے جی. تو مسیح نے تو یہ کہا نا کہ راستہ چلتے روٹی نہیں ساتھ لینا. ٹھیک ہے, کپڑے نہیں ساتھ لے کے چلنے. ٹھیک ہے, وہ بیابانی سفر یاد کرایا, جو جیسے کلیسیا بیابانی کلیسیا سفر کر رہی تھی, تو اسی طرح ہمارا سفر ہے. ساتھ نہ تو لے کے گھر سے لے کے جانا ہے, وہاں ہی خدا کرے گا تمہارے لیے مہیا. کہتے ہیں لکھا سردی میں, ننگے پن کی حالت میں. ٹھیک ہے, جب سفروں میں ہے, جب جہاز ٹوٹنے کی بلا میں کپڑے چھپڑے پڑ جاتے ہیں, جوتیاں ٹوٹ جاندیاں نے, جوتے گم گئے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں بہ گئے ہیں. کہتے ہیں 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں. ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں, اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا, سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز یاد آتی ہے. ہیلیلویا. ساری کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے. میں اگر پوچھوں کہ رات کتنی دیر دعا کرتے رہے ہیں صبح کی عبادت کے لیے, رات کتنا ٹائم, آج صبح کیا ہے, سنڈے ہے جی, تو عبادت ہے, تو کتنی کلیسیا کے لیے یا خادم کے لیے کتنی دیر دعا کرتے رہے ہیں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے کہ ہاں بھائی کلیسیا کے لیے, فلاں فیملی کے لیے ٹارگٹ رکھ کے میں فلانے بندے کے لیے, فلانی بیٹی کے لیے میں دعا کرتا رہا ہوں کہ خدا آج میں اسے تیرے مذبح پر دیکھوں, تیری حضوری میں دیکھوں, اور اسے میں خالص دیکھوں. تو کیا کہتے ہیں, ان باتوں کے علاوہ رات کو کیا ہوتا ہے؟ پڑھے جی پاسٹر صاحب, آپ پڑھیے دوبارہ اسی 28 آیت. ان باتوں کے علاوہ, ان باتوں کے علاوہ, اور ان باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا, سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز یاد آتی ہے. ہر روز یاد آتی ہے. ساری کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز یاد آتی ہے. ساری کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز یاد آتی ہے. رات کو اٹھ بیٹھتا ہوں, رات کو میں اٹھ بیٹھتا ہوں. آگے سنے جی, کہتے ہیں کسی کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا. لوگ ٹھوکرے مارتے ہیں, لوگ ستاتے ہیں, ہم سہتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے, کہتے ہیں میں کسی کی کمزوری سے کمزور نہیں ہوتا,
किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता, किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता है। ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਠੋਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੁਆ ही करन ते चर्च जानते नहीं दिल करता, ठीक है नहीं। क्या कहता है, कहते इतने में तो कहते हैं ना पुलिस गैर कौम के खतरों में है, अपनी कौम के खतरों में, भूख प्यास की हालत में, तो किसी के कमज़ोर करने से मेरा, मैं कमज़ोर नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। नीचे वाला इससे पहले 30 आए। अगर फ़ख्र ही करना ज़रूर है तो उन बातों पर फ़ख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी से मुतल्लिक हैं। खुदावन यीशु का खुदा और बाप जिसकी अब तक हम्द हो जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में उस हाकम ने जो बादशाह अरतास की तरफ से था मेरे पकड़वाने के लिए दमिश्क के शहर पर पहरा बिठा रखा था। आमीन। अभी यहाँ जो 23 आयत है, कहते हैं दमिश्क में उस हाकम ने जो बादशाह अरताउस की तरफ से था मेरे पकड़वाने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बैठाया रहा। क्या? पालूस को पकड़ना है, ठीक है, पालूस को आज पकड़ना है और उसको मारना है। पहरा सारी रात पहरा बैठा रहा। कहता है दमिश्कियों के शहर पर पहरा बैठा रखा था। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह पर दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया, ठीक है। दूसरे साथियों ने, शागिर्दों ने क्या कहा कि अभी तो बाहर पहरा बैठा है, पालूस को पकड़ने के लिए पहरा बिठाया है, पालूस को मारने के लिए ताकि से मार दे, काम खत्म हो जाए। कलीसिया को मसीह की मनादी कर रहा है और कलीसिया को, शागिर्दों को तैयार कर रहा है, ठीक है, मसीह की बिशारत दे रहा है कि आज पालूस रसूल इत्थे वे ते पहरा बैठा रहे, ठीक है। तो साथियों ने क्या किया है, साथियों ने मदद की है। तो लिखा फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह पर दीवार से लटका दिया गया। साथियों ने क्या किया, टोकरे च पाया, पालूस रसूल किने च पा दिता है, टोकरे च रस्सा बांध दिता है, खिड़की चो लटका दिता है ताकि बादशाह के हाथ से, लोगों के हाथ से बचाया जाए। पालूस ने तो अभी बहुत सा काम करना है, ठीक है। लिखा कलाम सिखाते हैं यूं मैं लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया। कहते हैं बारहा मैं मौत के खतरों में रहा। जितने लीडर हैं सुन ले कि कैसे कैसे पालूस रसूल मुसीबत और फाका कशी की हालत में है, ठीक है। पेट भर के जाना है, रोटी नहीं बाजी हले खा दी, रोटी खा ली आने, ठीक है। ते अगर किते मनादी ली जाने ना रोटी ना मिले ते पूरा सफर साडा शोर से गुजर जाता है, वो तो रोटी नहीं मिली, ठीक है। तो पालूस रसूल क्या कह रहा है, कहते हैं फाका कशी की हालत में रहा हूँ, ज्यादातर मैं फाका कशी की हालत में, फिर बेदारी की हालत में रहा हूँ, और फिर इन बातों के अलावा सारी कलीसिया की फिक्र मुझे हर रोज आती है। आमीन। ये इसको कहते हैं खिदमत करना, इसको कहते हैं खिदमत करना, इसको कहते हैं भूखा प्यासा रहना और रोज़ों के साथ उनके लिए दुआ करता रहा। और क्या किया, बुजुर्गों को मुकर्रर कर दिया कि अब इनकी क्या करनी है, इनके लिए दुआएं करते रहना है। ये है काम खिदमत का। यह है रसूलों की ज़िंदगी से हमें सबूत मिलता, उनसे हमें नमूना मिलता कि हमें कैसे खिदमत करना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी उसकी एक और खूबी देखते हैं, इन मुसीबतों और उसकी सिफतें कितनी हैं। फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत देखे जी, सुनने तवज्जो कीजिए, सारे बच्चे बड़े बुजुर्ग तवज्जो करें। फिर पालूस रसूल का खाते फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, गर्ज ए भाइयों मुझे और आपको, उस वक़्त उनको शागिर्दों को, भाइयों को कहता है, गर्ज ए भाइयों जितनी बातें सच है, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश है, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। क्या किया करो? उन पर गौर किया करो। जैसे कि गौर कर रहे हैं, ठीक है। मौजूदा दौर में किस पे गौर कर रहे हैं जी, जो जी किस पे गौर कर रहे हैं मौजूदा दौर में? दुनियावी कामों है
मोबाइल पे गौर कर रहे हैं पादरियां दे हाथ च मोबाइल, कलीसिया हाथ च मोबाइल, लीडरां हाथ च मोबाइल, छोटे बच्चियां दे हाथ च मोबाइल है। गौर की आंखें किधर लगी? कलाम मुकद्दस की तरफ तो गौर ही नहीं है, वजह नहीं है। सुबह उठ के किसको पहले देखते हैं? मोबाइल को। सबसे पहले सुबह उठ के किस चीज को देखते हैं? मोबाइल बोलिए। सच बोलो। बाइबल मुकद्दस सराहने रखी होंदी है नहीं। कि ਉਹਦੇ ਤੇ गौर करिए। तो अभी ये इन बातों पर ये बातें हमें कहाँ मिलती हैं? कलाम मुकद्दस में, पौलुस रसूल की जिंदगी में, दीगर रसूलों की जिंदगी में, मेरे आका मसीह यीशु की जिंदगी में है। मेरे आका मसीह यीशु की जिंदगी में ये बातें मिलती हैं। कहते हैं लिखा कि उन पर गौर किया करो। कितनी लंबी लिस्ट है जो उसने बताई हैं, जो कहते हैं कि इन पर गौर किया करो जो बातें तुमने मुझसे सीखी। हालेलुया। हालेलुया। इन्हें भूल नहीं जाना, ईमान च कायम रहना। अभी जो पीछे हम हवाले पढ़ के आए हैं, कहते हैं जो तुमने मुझसे सीखी और हासिल की, मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी। हालेलुया। मुझ में देखी। ये पौलुस रसूल की जिंदगी है, इन पर गौर करता है। बहुत सारी मुसीबतों के अलावा भी इन चीज़ों पर अमल करता है, इन बातों पे अमल करता है। कहता है मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। खुदा इत्मीनान का चश्मा ऐसे ही साथ रहेगा। अगर ये सारी बातें जिंदगी में है ही नहीं है तवज्जो ही सारा मोबाइल ते वे, तवज्जो ही सारा दुनियावी कामों पर है, तवज्जो ही जो है हमारी आंखें किसी और चीज़ को देख रही है, तो इत्मीनान का चश्मा इंची आ जाएगा साढ़े को है। वो कितनी आपके ज़हन नशी हुई है जो मैंने पहला करंथियों दूसरा करंथियों पढ़ा है मुसीबतें जो उसकी लिस्ट भरी है, मुसीबतों के उसके दुखों की। वो कहते हैं अब इन बातों पे गौर करोगे तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है फिर तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसे ही तुम्हारे साथ है। कहते हैं बहुत सारी मुसीबतें, कहते हैं मैंने नजर पे आता है कि बहुत सारी मुसीबत उठा कर फिर खुदा दी बादशाही नसीब होनी है। बहुत सारी मुसीबतें सह कर बर्दाश्त करके फिर क्या होगा? खुदा की बादशाही नसीब होगी। आइए किलसियों के नाम, पौलुस रसूल का खातिर किलसियों के नाम, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत इन चीज़ों की तरफ गौर करता है। आज जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आमीन। अभी देखो कलीसिया को क्या कह रहा है, मुझे क्या कह रहा है, पास्टर साहब को पौलुस रसूल क्या कह रहा है? उस दौर की कलीसिया को क्या कहता है, मौजूदा कलीसिया के लिए क्या है? कहता है बस तुम मसीह के साथ जलाए गए, जिंदा किए गए, तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है। मसीह का है आलम बाला पर, कहते हैं जहाँ मसीह मौजूद है। ठीक है, यहाँ तो ये तो ज़मीन की तरफ खींच के, ये तो मोबाइल तो ज़मीन की तरफ, अंदर की तरफ। जैसे ज़मीन से भर गया कितने गया और लानती होया ज़मीन जिनको अंदर निकल गई। तो कहते हैं अब यहाँ मसीह है, मसीह किधर है? ऊपर है। मसीह कहाँ है? ऊपर है। और जब हम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहेंगे तो वो हमें मसीह तक लेके जाएंगे। आमीन। कहाँ? मसीह के पास आमीन। लेके जाएंगी। कहते हैं चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। हालेलुया। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए, तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पशीदा है। जब मसीह हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर। आमीन। मसीह क्या है? हमारी ज़िंदगी है जब ज़ाहिर किया। हमारा अमान है ना कि मसीह ज़ाहिर किया जाएगा, आमीन। यानी मसीह बादलों के साथ आएगा। आमीन। हमारा अमान है ना कि मसीह Yes. बादलों के साथ आएगा। Yes. तो कहते हैं जब मसीह ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी हम अभी उठा लिए जाए, अभी इस बदन को छोड़ के मसीह में सो जाएं, या आने वाले सालों में
या जो मनादी करके खिदमत करके मर गए हैं तो वो मसीह के साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, मसीह के साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाएंगे। आमीन, आमीन, मसीह के साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाएंगे। मसीह ने एक बार है वो मसीह हमारा आका, उसने बहुत बड़ा काम किया है। 3 रात दिन कब्र में रहे हैं, फिर जिंदा हुए हैं, ठीक है, फिर जिंदा हुए हैं, कोड़े खाए, मुसीबत उठाई, वो तो कुदूस थे, वो तो पाक थे, वो तो खुद कलाम मुजस्सम हुआ था। अभी पालूस रसूल ने इंसान होके कहते हैं 5 बार मैंने यहूदियों से एक कम 40 कोड़े खाए हैं। तो लिस्ट जो आपके सामने मैंने पढ़ दी है वो आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए और आप घर जाकर भी उसे पढ़ सकते हैं। आइए यहाँ दूसरा तिमोथियुस है, उसका 4 बाब है, 4 बाब और उसकी आयतें मुबारक पहली से पढ़ते हैं। कहते हैं आपने बाइबल मुकद्दस पे आपने सबने गौर करनी है। लिखा खुदा और मसीह यस्सू को जो जिंदों और मुर्दों की इदारत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मस्तद रह, क्या कर, मजबूर कर। किसको कह रहा है? अपने शागिर्द तिमोथियुस को है। किन 2 पॉइंट पे हम गौर करके आए, कलीसिया को, शागिर्दों को। अभी आ गया आप पालूस रसूल किसकी तरफ? अपने शागिर्द की तरफ, ठीक है। लिखा कहता है मस्तद रह, हर तरह से तहम्मुल तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत करे, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं? उस दौर में भी था और भी उस्ताद है मेरा, और तुसी किसी का उस्ताद बनो। अबे शुरू में वक्त के लिहाज से तुम्हें क्या होना चाहिए? उस्ताद। रात को कलाम करते वक्त के लिहाज से क्या होना चाहिए? तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। और भी मेरा उस्ताद ही, और भी मेरा उस्ताद ही, ठीक है। हुन तू आगू बनन दा टाइम है, हुन क्या, हुन तुसी किसी दे उस्ताद बनो, ठीक है। अब आप कुछ नजर आए, आप में कुछ नजर आए, ठीक है। आप दूसरों के पीछे क्यों जा रहे हो जबकि खुदा ने आपको मुकर्रर किया, जबकि खुदा ने आपको मखसूस किया, जबकि खुदा ने आपको चुना है? तो आप दूसरों के पीछे क्या और जिन्हों किसी ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਇਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਕਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕੱਚੀ ਕਲੀਸਿया ना बनो, ना कच्चे भुने बनो, ठीक है। कलीसिया कच्चे दाने ना बनो, उन्होंने कोई मज़ा नहीं आता। नीम गरम ना बनो, ठीक है। सरगर्म हो जाओ, खुदा का कलाम सिखाता है। अब क्या, अब तुम में काबिलियत नजर आए है तो लिखा कलाम सिखाता है, कहते हैं बहुत से अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से साथ बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ फेर कर कहानियों पर मुतवज्जो होंगे, मगर तू सब बातों में होशियार रह। क्या रह? नसीहत किसको कर रहा है? शागिर्द को, तिमोथियुस को। होशियार रह, दुख उठा। क्या करना है? दुख। वहाँ पीछे माल की किताब में शुरू ही की है, अभी खिदमत शुरू ही रसूलों को हुई है। पालूस रसूल की खिदमत शुरू ही, कहते हैं लगता है पे नज़र आता है कि बहुत सारे दुख सह के खुदा की बादशाही से दाखिल होना है, बहुत सारे दुख उठा के खुदा की बादशाही से दाखिल होना है। वो लोग तो मर जाने वाला सेहरा, पैमान की मिसाल उसने दी ना, सेहरा मर जाने वाले सेहरा पाने के लिए इतनी दौड़ते हैं, तो हम तो उस सेहरे के लिए दौड़ रहे हैं जो नहीं मर जाता है। हम उस सेहरे के पीछे हैं, उस ताज के पीछे हैं जो नहीं मर जाता। उसको क्या कहते हैं? दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, बशारत का काम अंजाम दे, खिदमत का दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, आधे में नहीं छोड़ना।
दौड़ निशान बेटकाना, कहता मैं बेटकाना नहीं हूँ। पालूस रसूल क्या कहता है, मैं बेटकाना नहीं, दौड़ लाइए बेटकाना निशान का पता ही नहीं कितने दौड़े जाने यहाँ पे, ठीक है, तो पूछे थे कितने दौड़े जाने यहाँ पे। लिखा कहते हैं अपनी खिदमत को पूरा करे क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा। उस वक़्त का कलाम है, उस वक़्त उसने नसीहत की है जब उसका वक़्त, जब इस दुनिया से कूच करके जाने को था। पालूस रसूल कहते हैं मैं अब क्या हो रहा हूँ, कुर्बान हो रहा। आपको पता है ना पालूस रसूल कब कुर्बान हुआ है? क्या पालूस रसूल को स्लीप दी गई है? सवाल है वो पीछे वालों से। क्या वेरी गुड, आमर के लिए क्लैपिंग करेंगे। सर का नहीं किया गया, क्या किया गया? सर का हटा गया। इन्ना दुख सहन तो इन्नी खिदमत करन तो बाद भी की होया, सिर कटिया गया। की किया गया? सिर किसके लिए काटा गया? मसीह के लिए। तो बैठा किधर है आप बताएं जी, जब साधु गया बताए जरा, जरा अच्छी ना याद नहीं। वो साधु साहब गए हैं, मैंने लास्ट में बताया था, पहाड़ पर, और वहाँ पर रोया देख रहे हैं कि मैं आसमान पे और एक सफ़ेद जामा पहने और तख्त पर बैठा हुआ है, उसके सामने बिल्कुल पाँव के सामने जो है ना एक शख्स बैठा हुआ है और उसके चेस्ट के ऊपर जो है ना मेडल लगे हुए हैं। तो वो जब साधु साहब ने पूछा कि ये कौन है, तो यीशु मसीह ने बताया कि ये तू नहीं जानता ये कौन है, ये पलूस रसूल है, और ये जो निशान देख रहा है ये मेडल है जो इसने मेरे लिए दुख उठाए हैं। हालेलुया। वो जो दुख उठाए हैं, जो कोड़े खाए हैं, जो बैठ लगे हैं, ये है उसका नाम। हालेलुया हालेलुया। तो साधु कौन से थे? साधु सुंदर सिंह स्वामी। सुंदर सिंह स्वामी साहब। हालेलुया। उन्होंने देखा रोया में पालूस को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं खिदमत पूरा करे क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ, मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है, मैं अच्छी खुशी लड़ चुका। क्या लड़नी है? अच्छी कुश्ती लड़नी है। अच्छी दौड़ दौड़नी है। कहते हैं मैं अपने अच्छी खुशी लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। ऐसे दौड़ खत्म हुई है, दौड़ता सी पिया, ठीक है। इसके पीछे निशान की तरफ दौड़ा चला जाए, वो हवाला मैं छोड़ा यूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। कहते हैं दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने अमान को महफूज रखा है। शिगिर्दों अमान की किताब क्या रखा है? शिगिर्दों के अमान को क्या रखना है? महफूज रखना है। कहते हैं अब मैंने अमान को महफूज रखा। पालूस रसूल ने अपने अमान को तो जान नहीं दिता किधर भी, ठीक है। और कोड़े लगन लगे ने, बैंत लगन लगे ने, हुण उन्होंने मार मार के मुर्दा करके सुट देता, हुण दोबारा इतने नहीं आना, ठीक है। तो क्या कहते हैं? कहते मैंने अमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रासबाजी का ताज रखा हुआ है। हालेलुया। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है उसे, अमान की आंखों से देख रहा। कहते हैं मेरे वास्ते रासबाजी का ताज रखा हुआ है जो आदल मुंसफ मुझे यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। आमीन। पहले क्या थी? कहते हैं जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है। मैं और आप किस चीज़ के आरज़ूमंद है? बोलना, मैं और आप किस चीज़ के आरज़ूमंद है? गाड़ियों की, घरों की, दुकान। रासबाजी में आ जाते हैं। मैं और आप किस चीज़ के मुंतज़र हैं? मैं और आप भी उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। पालूस रसूल सारे रसूल मसीह खुदावंद की आमदे सानी का जिक्र कर रहे हैं, आने के दिन का इंतजार यहाँ पे जिक्र हो रहा है ना। कहते हैं उस दिन मुझे देगा ताज, रासबाजी का ताज मेरे सर पे रखा जाएगा, सिर्फ मुझे ही नहीं उन सब को भी जो उसके रासबाजी के उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। आमीन। मैं और आप उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, है ना। उसके ज़हूर के, उसकी बादशाही ज़रूर, यीशु दोबारा संडे स्कूल में बच्चे गाते हैं, यीशु दोबारा ज़रूर आएगा, यीशु दोबारा ज़रूर आएगा। संडे स्कूल के बच्चे गाते हैं ना। मैं और आप उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, उसकी बादशाही की बनाती हो रही है, आने की, दोबारा आने की, आमदेसानी की। मैं और आप उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। आमीन। मैं और आप उसके ज़हूर, कहते हैं सिर्फ मुझे ही ताज नहीं मिलेगा,
मुझे जितनी ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी मुसीबत है, जितनी ज़्यादा बड़ी क्या है कुर्बानी है, उतना ही बड़ा अजर है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, Lord. उतना ही बड़ा अजर है। अभी बताया ना खादम ने कि भाई क्या लगे मेडल लगे हुए हैं उसकी पूरी, ये क्या है उसके जितने उसने मेरे लिए दुख सहे हैं, जितने उसने दुख से अब कहाँ बैठा है, मसीह यीशु के कदमों में। यहाँ ना भूख है, यहाँ ना भूख है, कहता है भूख और प्यास, फाका कशी की हालत में वहाँ बैठे, कहता है मसीह अपना कहमा उन पे तान देगा, है वहाँ ना धूप, कहते हैं वो पूरा लिस्ट पढ़ के आया ना उसके दुखों की, है कहते हैं सर्दी गर्मी भूख प्यास फाका कशी, है दुख मुसीबत की हालत में वहाँ बैठ गया जहाँ मसीह अपना खैमा तान देगा, और ना उनके आंसू पोंछ देगा, ना अब आंसू रहेंगे, ना अब मौत रहेगी। कहता है बारहा मैं मौत की हालत में, ठीक है, रहा हूँ, तो ना मौत रहेगी और ना भूख है, ना प्यास है, ठीक है, ना धूप है, ना गर्मी है, ठीक है। अब कहाँ बैठ गया है मसीह यीशु के कदमों में, और मसीह ने अपना कहमा तान दिया है। अब सारे दुख क्या हो गए हैं, खत्म हो गए। अब बड़ी खुशी के साथ कह रहे, कहते हैं मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ, मेरे कूच का वक्त आ गया है, मैं अच्छी खुशी लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया है, मैंने ईमान का महफूज रखा है, आइंदा के लिए मेरे लिए रासबाजी का वो ताज रखा है जो आदन मुंसा मुझे देगा, सिर्फ मुझे ही नहीं उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आमीन हालेलुया हालेलुया। आका के लिए पौलुस रसूल के लिए आइए सारे शुक्रगुजारी से बातें, हालेलुया, थैंक्स गॉड, हालेलुया।